میرے اندازے کے مطابق یہ بستی 250 سے 300 گھروں پر مشتمل تھی۔ ہم ایک اونچی جگہ پر پودوں کی آڑ میں بیٹھے اندھیرا گہرا ہونے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ کم لوگوں سے سامنا ہو۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد ہم بستی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوئے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ آگے کی صورتحال کیا ہوگی، مگر ہماری رائفلیں ایک لمحے کے نوٹس پر استعمال کے لیے تیار تھیں۔ اونچے نیچے اور تاریک راستے پر ٹھوکر سے بچنے کے لیے میں نے انگوری کا ہاتھ تھام لیا، جس پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ بستی کے پہلے مکان کے پاس سے بکریوں کے ممیانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گلی میں مکمل اندھیرا تھا اور اتفاق سے کوئی موجود نہیں تھا۔ اچانک ایک گھر کا دروازہ کھلا اور 3-4 بچے شور مچاتے ہوئے نکلے، مگر تاریکی کی وجہ سے انہوں نے ہمیں اجنبی سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ پھر 2 عورتیں گزریں، ایک نے بچے کو گود میں اٹھا رکھا تھا اور دوسری کے ہاتھ میں ٹوکری تھی۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکیں اور پھر اپنے راستے پر چل پڑیں۔ چند قدم اور چلنے کے بعد ہم ایک دکان کے سامنے رک گئے، جس کے دروازے سے روشنی اور اندر سے 2-3 آدمیوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ میرا اندازہ درست تھا، وہ ایک چھوٹی سی دکان تھی۔ اندر کا سامان بکھرا ہوا تھا اور غربت کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ایک اونچے سٹول پر جلتی ہوئی لالٹین روشنی کا واحد ذریعہ تھی۔ ہم جیسے ہی دروازے پر آئے، اندر بیٹھے ہوئے تینوں آدمی گھبرا کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دکان میں 2 آدمی سامنے ایک خالی کنستر اور لکڑی کی چوکی پر بیٹھے تھے، جبکہ دکاندار سامان کے پیچھے تھا۔ ایک شخص پشاوری طرز کے حقے سے کش لے رہا تھا، جسے اس نے ہمیں دیکھ کر چھوڑ دیا۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا، گھبرائیں نہیں، ہم یہاں بابا عبدالفتح سے ملنے آئے ہیں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کہاں ملیں گے؟ دکاندار نے چونک کر پوچھا، بابا عبدالفتح؟ کون ہو تم لوگ اور کہاں سے آئے ہو؟ باقی دونوں بھی مشتبہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے اور انگوری کے بارے میں بتایا، لیکن یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ہم 12 دن بابا کے مہمان رہے ہیں اور انہیں دفن کر کے آ رہے ہیں۔ کنستر پر بیٹھے آدمی نے کہا، اوہ، تو تم مولوی رسول بخش کے بیٹے ہو، مگر تم تو کمانڈر محب اللہ کے ساتھ تھے۔ میں نے تصدیق کی اور بتایا کہ گلمرگ کیمپ پر کارروائی کے بعد میں انگوری کی بستی پر بھارتی فوجیوں کے حملے کی خبر سن کر یہاں آیا ہوں۔ اس شخص نے گہرا سانس لے کر کہا کہ یہ تشدد اور گھر جلانے کا عمل تو روز کا معمول بن چکا ہے۔ اس نے بتایا کہ بابا عبدالفتح بستی میں نہیں ہیں، بلکہ ان کا ٹھکانہ دور پہاڑوں میں ہے۔ تب میں نے کہا، ولی محمد تو بستی میں ہوگا، وہ اس بستی کا بڑھئی ہے، ہمیں اس سے ملوا دو۔ کنستر پر بیٹھے شخص نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہا، ولی محمد میرا ہی نام ہے، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اصرار کیا کہ میں پہلے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسرے آدمی نے ولی محمد کو اشارہ کیا، تم انہیں گھر لے کر چلو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ ولی محمد کے اشارے پر ہم دکان سے نکل کر اس کے ساتھ ایک تنگ اور تاریک گلی میں چلتے رہے، جہاں ایک بوڑھے خریدار نے ہمیں عجیب نظروں سے دیکھا۔ ولی محمد نے ایک دروازہ کھٹکھٹایا اور تھوڑی سرگوشیوں کے بعد ہمیں اندر بلا لیا۔ وہ ہمیں ایک کمرے کے سامنے چھوڑ کر لالٹین لینے چلا گیا۔ کمرے میں کوئی فرنیچر نہیں تھا، صرف فرش پر بوری اور نمدے بچھے تھے۔ ہم نے اپنی رائفلیں رکھ کر دیوار سے ٹیک لگا لی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ولی محمد ہمارے لیے کھانا لایا، ایک پلیٹ میں ابلے ہوئے چاول اور ایک پیالے میں پتلی سی دال۔ وہ ہمارے لیے پانی لے آیا اور ایک طرف بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران ہم نے وادی کے حالات پر بات کی اور مجھے حیرت ہوئی کہ بستی کے لوگ بھی بھارتی فوج کے خلاف چھاپہ مار کارروائیوں کی وجہ سے میرے نام سے واقف تھے۔ کھانے کے فوراً بعد ولی محمد بکری کے دودھ کی چائے لے آیا۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھیوں کے آنے سے پہلے بات کر لوں۔ ولی محمد نے کہا، تم کچھ کہنا چاہتے تھے؟ میں نے چائے کا گھونٹ پیا، چند لمحے خاموش رہا اور پھر آہستہ آواز میں بابا عبدالفتح کی شہادت کا سارا واقعہ سنا دیا۔ ولی محمد کا چہرہ دھواں ہو گیا اور اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ رستم پر بابا کا شبہ درست تھا،
क्योंकि मुखबरी के बगैर भारतीय फौजियों का उस जगह पहुंचना नामुमकिन था। मैंने उस नुकसान पर अफसोस का इजहार किया, जिस पर वली मोहम्मद का चेहरा करब से भर गया। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे सब्र की तलकीन की। वली मोहम्मद ने पूछा, अब तुम क्या करना चाहते हो? आज रात रुस्तम के घर पर छापा मारना है। वो अकेला ही रहता है और उसका मकान बस्ती की दूसरी तरफ नदी के किनारे पर है। अंधेरा होते ही वो दुकान बंद करके घर चला जाता है और किसी से नहीं मिलता। वली मोहम्मद ने मजीद बताया कि अब उसे भी रुस्तम पर शुबा हो रहा है। पिछले 4 महीनों में 3 मरतबा मुजाहिदीन ने यहाँ पनाह ली और हर मरतबा चंद घंटों बाद ही भारतीय फौजियों ने बस्ती को घेर लिया, जिसमें 7 मुजाहिदीन मारे गए और 3 घर जला दिए गए। दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने वली मोहम्मद को हिदायत दी कि वो अपने साथियों को बाबा की शहादत के बारे में बता दे, लेकिन रुस्तम का नाम राज में रखे। वली मोहम्मद बाहर गया और अपने साथियों को बाबा के बारे में बताया, जिस पर उनकी आंखें भी नम हो गईं। वो दोनों वापस चले गए और वली मोहम्मद हमारे पास बैठा रहा। कुछ ही देर में बस्ती के मुख्तलिफ लोगों की आमद और रफ्त शुरू हो गई। रात 11 बजे के करीब 3 और आदमी आए। उनमें एक 40 के लगभग उम्र का भारी भरकम गोल दाढ़ी वाला शख्स था, जिसने सफ़ेद टोपी और सुर्ख चेक वाला रुमाल कंधों पर फैला रखा था। वली मोहम्मद ने तारुफ कराया, ये बाबा रुस्तम हैं, बहुत नेक और शरीफ आदमी। भारतीय फौजियों ने उनके बीवी बच्चों को शहीद कर दिया था और वो पिछले चंद महीनों से यहाँ रह रहे हैं। रुस्तम ने मुझसे गर्म जोशी से हाथ मिलाया और अंगोरी को अजीब नज़रों से देखा। मुझे लगा कि उसे बाबा अब्दुल फतह की शहादत की खबर मिल चुकी है और वो तस्दीक के लिए आया है। मैंने इसे बताया कि जो 4 भारतीय फौजी बाबा को पकड़ने आए थे, वो हमारे हाथों मारे जा चुके हैं। ये सुनकर उसके चेहरे पर अजीब तासुरात आ गए। आधे घंटे बाद रुस्तम चला गया और उसके साथी भी थोड़ी देर बाद रुखसत हो गए। मैंने वली मोहम्मद की तरफ देखा और कहा, अब मैं उसे मौका नहीं देना चाहता। वली मोहम्मद ने परेशान होकर पूछा, क्या प्रोग्राम है? मैंने जवाब दिया, अभी चलते हैं। अगर हमारा शुबा दुरुस्त निकला तो उसे मुआफ़ नहीं किया जाएगा। अंगोरी की रजामंदी के बाद हम वली मोहम्मद के साथ रात की सुनसान गलियों से होते हुए रुस्तम के मकान की तरफ रवाना हुए, जो बस्ती से तकरीबन 100 गज दूर नदी के किनारे वाक़ था। मकान के करीब पहुंचकर हम मुकम्मल मुहतात हो गए। चारदीवारी ज़्यादा ऊंची नहीं थी, इसलिए हम आसानी से अंदर कूद गए। ये 2 कमरों का मकान था। मैंने पहले कमरे की खिड़की के बंद पट्टों की मामूली दर्ज से अंदर झांका तो हैरत और गुस्से से मेरा दिल हलक में आ गया। अंदर रुस्तम एक चौकी के सामने आलती पालती मार कर बैठा था, जिस पर लालटेन रखी थी। लालटेन के साथ ही लकड़ी के फ्रेम में काली देवी की एक तस्वीर रखी थी और रुस्तम सर झुकाकर हाथ जोड़े बैठा था। 1 मिनट बाद उसने वो तस्वीर एहतियात से एक ट्रनक में कपड़ों के नीचे छुपा दी और उसमें से ट्रांसमीटर जैसा एक डब्बा निकालकर सामने रख लिया। ये देखकर मेरी कनपट्टियां सुलग उठीं और दिमाग में सनसनाहट होने लगी। वो ट्रांसमीटर ही था। मैंने वली मोहम्मद को इशारा किया। उसने झुककर झुरी से देखा और एक झटके से सीधा हो गया। माहौल में सन्नाटा था, सरगोशी की आवाज़ भी अंदर जा सकती थी। वली मोहम्मद के इशारे पर मैंने अंगोरी को पिछली खिड़की की तरफ भेज दिया, ताकि अगर रुस्तम फरार होने की कोशिश करे तो उसे रोका जा सके। मैंने एक बार फिर अंदर देखा। रुस्तम ने ट्रांसमीटर का ढक्कन खोल लिया था और उसमें से रेडियो एंटीना जैसा एक राड खींचकर तकरीबन 2 फीट ऊपर तक निकाल लिया था। वो अब बारीक तारों को जोड़ने लगा था। मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ रही थी। मुझे समझने में देर ना लगी कि वो बाबा की मौत और हमारी मौजूदगी की इत्तला देने वाला है। एक भी लम्हा ज़ाया किए बगैर मैं 2 कदम पीछे हटा और कंधे की ज़ोरदार टक्कर दरवाजे को मारी। दरवाजे का कुंडा कमज़ोर था और वो एक ज़ोरदार धमाके से खुल गया। दरवाजे के धमाके से रुस्तम उछल पड़ा। ट्रांसमीटर उसके हाथ से छूटकर चारपाई पर जा गिरा। वो बदहवास हो गया था, मगर मैंने दिल ही दिल में उसके मजबूत आसाब की दाद दी
कि उसने आधे मिनट से भी कम वक्त में कुर्ते के नीचे से रिवॉल्वर निकाल लिया। मैंने टक्कर लगने के बाद संभलकर फौरन अपनी राइफल घुमाई। राइफल का बट रुस्तम के रिवॉल्वर वाले हाथ पर लगा और उसके मुंह से कराह निकली और रिवॉल्वर हवा में उड़ता हुआ दहलीज के करीब गिरा। अचानक रुस्तम ने खिड़की की तरफ छलांग लगा दी। मैंने अपनी जगह खड़े होकर उसे ललकारा, तुम्हारा राज खुल चुका है रुस्तम, भागकर कहीं नहीं जा सकते। बेहतर है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। उसने चीखते हुए कहा, अगर रोका तो इस बस्ती पर ऐसी तबाही आएगी जिसका तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे। काली माई मेरी रक्षा कर रही है, कोई मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। वो बातों में लगाकर खिड़की से फरार होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं इत्मीनान से खड़ा रहा। रुस्तम ने इस गलत फहमी में कि मैं काली माई के नाम से डर गया हूँ, खिड़की खोलकर दूसरी तरफ कूदने के लिए छलांग लगाई। लेकिन उसी लम्हे वो भयानक अंदाज में चीखता हुआ अंदर की तरफ गिरा। बाहर खड़ी अनगोरी ने पूरी कुव्वत से राइफल का बट उसके कंधे पर मारा था। मैंने राइफल सीधी करते हुए कहा, क्यों रुस्तम, तुम्हारी काली माई का जादू उल्टा क्यों हो गया? वो कराहते हुए बोला, तुम लोग बच नहीं सकोगे। उसी दौरान वली मोहम्मद भी अंदर आया और गिरा हुआ रिवॉल्वर उठा लिया। अकबी खिड़की पर अनगोरी राइफल की नाल टिकाकर उसे जद पर लिए खड़ी थी। मैंने रुस्तम पर नजरें जमाते हुए कहा, बाबा अब्दुल फतह का शुबाह तुम पर दुरुस्त था। तुम इन मजलूमों का दिया खाते रहे और इन्हीं के साथ गद्दारी करते रहे। इस नेकी का हिसाब तो अब बस्ती वाले तुमसे लेंगे। दिल, बाबा अब्दुल फतह को तो शुबाह था, लेकिन अब हमें यकीन हो चुका है कि तुम बाकायदा प्लानिंग के तहत यहाँ आए थे या तुम्हें भेजा गया था। उसके लिए एक कहानी घड़ी गई। कश्मीर के मुसलमानों के साथ तो बरसों से ये जुल्म हो रहा है, किसी मामूली सी बात पर उनके घरों को जलाकर राख कर दिया जाता है, उनके बीवी बच्चों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया जाता है, और इस बस्ती वालों की सादा लोही तो देखो। तुमने यहाँ आकर उन्हें एक दर्दनाक झूठी कहानी सुनाई और उन्होंने यकीन कर लिया। तहकीक करने की ज़रूरत शायद इसलिए नहीं समझी कि वादी में हर जगह मुसलमानों के साथ यही कुछ हो रहा है। इन्होंने तुम्हारी कहानी पर भी यकीन कर लिया और तुम उनकी सादा लोही से फ़ायदा उठाकर अपना काम करते रहे। तुम्हारा असल मिशन शायद बाबा अब्दुल फतह का सुराग लगाना था। इसके लिए तुमने पहले बहुत नेक, मतकी इंसान और पक्का मुसलमान बनकर बस्ती वालों का एतिमाद हासिल किया। बाबा अब्दुल फतह बस्ती में आता रहता था, तुम उनका एतिमाद भी हासिल करने की कोशिश करते रहे और बस्ती के बाज़ लोगों से छुपाकर उनके ठिकाने के बारे में पूछने की कोशिश करते रहे। लेकिन बस्ती के लोग गद्दार नहीं हैं, वो अपने हीरो का ठिकाना कैसे बता देते। उसी दौरान तुमने अपनी दूसरी सरगर्मियां जारी रखीं और वक्तन फवक्तन बस्ती में पनाह लेने वाले मुजाहिदीन के बारे में अपने आकाओं को इत्तिला देते रहे। मुझे नहीं मालूम कि तुमने बाबा अब्दुल फतह का ठिकाना किस तरह मालूम कर लिया था। हो सकता है बस्ती के किसी शख्स के मुंह से गलती से कोई ऐसी बात निकल गई हो जिससे तुम्हें बाबा के ठिकाने का पता चला और तुमने अपने आकाओं को इत्तिला दे दी। बाबा अब्दुल फतह ने मुजाहिदाना ज़िंदगी गुजारी थी, उसने एक मुजाहिद ही की तरह मौत को गले लगाया। वो तो शहादत के रुतबे पर फाइज हुआ और हर मुजाहिद की ख्वाहिश यही होती है। लेकिन वो जो 4 भेड़िए उसे घेरने के लिए आए थे, उनमें से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा सका। वो चारों जहन्नम वासिल हो चुके हैं, उनकी लाशें भेड़ियों की खुराक बन चुकी होंगी। मैं खामोश हो गया। मेरी नज़रें रुस्तम के चेहरे पर मरकूज थीं। वो फर्श पर खामोश बैठा अभी तक कंधा सहला रहा था जहां अनगोरी के राइफल के बट की ज़रब लगी थी। तुम्हें शायद किसी तरह हमारे बस्ती में आने की इत्तिला मिल गई थी, मैंने चंद लम्हों की खामोशी के बाद कहा। और शायद तुम्हें बाबा अब्दुल फतह की शहादत का भी पता चल गया और तुम तस्दीक करने के लिए वली मोहम्मद के घर पहुंच गए। लेकिन तुम ज़्यादा देर वहां नहीं बैठे, तस्दीक होते ही वापस आ गए और ट्रांसमीटर पर अपने आकाओं को इत्तिला देने जा रहे थे। तुमने जो कहना था कह चुके, रुस्तम ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। उस वक्त उसके चेहरे पर और लहजे में इत्मीनान की झलक देखकर मैं चौंके बगैर नहीं रह सका था।
तो गोया तुम्हारे पास भी कहने को कुछ है। मैंने उसे घूरा। हाँ, उसने जवाब दिया। ये जो कुछ भी गोया किसी गलत फहमी का नतीजा है। मैं मुसलमान हूँ और इसी वादी की मिट्टी से जन्म लिया है। मैं भी इस ज़मीन का इतना ही वफादार हूँ जितने तुम या कोई और मुसलमान हो सकता है। मैं इस सरजमीन से गद्दारी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तुम्हें शायद गलत फहमी हुई है। तुम अगर आराम से बैठकर बात करो तो मैं अपने मौक़िफ़ को सच साबित कर सकता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। मैंने उसे घूरा। तो फिर तुमने भागने की कोशिश क्यों की थी? हर कश्मीरी मुसलमान की तरह मैं भी डरा हुआ हूँ। ज़िंदगी का एक एक लम्हा खौफ के साए में गुजरता है। मेरी कहानी तुम सुन चुके हो, वो गलत नहीं है। मेरे साथ वाकई जुल्म हुआ है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बोला, श्रीनगर में मेरे साथ जो जुल्म हुआ वो कोई ढकी छपी बात नहीं है। तुम श्रीनगर के लाहौरी मोहल्ले में जाकर तस्दीक कर सकते हो। मेरे हाथों एक भारतीय फौजी मारा गया था और मैं छपकर यहाँ ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। तुमने जब टक्कर मारकर दरवाज़ा खोला तो मैं यही समझा था कि भारतीय फौजियों को मेरे बारे में पता चल गया है और वो मुझे पकड़ने के लिए आए हैं। उसी लिए मैंने भागने की कोशिश की। और वो ट्रांसमीटर, मैंने ज़मीन पर पड़े हुए ट्रांसमीटर की तरफ इशारा किया। वो ट्रांसमीटर नहीं, ट्रांजिस्टर रेडियो है, रुस्तम ने जवाब दिया। मैं खबरें सुनने के लिए रेडियो ऑन करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने उसकी बात काट दी। इस वक्त किसी रेडियो स्टेशन से खबरें नहीं आती। ऑल इंडिया रेडियो से तकरीबन हर घंटे बाद खबरों का बुलेटिन नश्र होता है जिससे हालात का पता चलता रहता है। मैं फिर कहता हूँ कि तुम लोगों को गलत फहमी हुई है। मैं मुसलमान हूँ और मैंने एक बार फिर उसकी बात काट दी। तुम कैसे मुसलमान हो? मुसलमान खुदा के सिवा किसी और से मदद नहीं मांगता। किसी मुश्किल के वक्त भी उसके मुंह से खुदा ही का नाम निकलता है। और तुम कैसे मुसलमान हो कि मुझे अपनी काली देवी के अजाब से डरा रहे थे? रुस्तम ने जवाब दिया, मैं श्रीनगर में पैदा हुआ और वहीं पिला बढ़ा हूँ। वो बिलाशुबा आहनी आसाब का मालिक था। रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद उसने अपने आप पर काबू पा लिया था और इस वाक़ये को कोई और रंग देने की कोशिश कर रहा था और मेरे ख्याल में उसकी बात सुन लेने में कोई हरज नहीं था। हमारे मोहल्ले में हिंदुओं की अक्सरियत है। मैं बचपन ही से उनके बीच में रहा हूँ। हिंदी अल्फाज बोलने और हिंदू देवी देवताओं के नाम लेने की आदत हो गई है। मैंने उसे घूरा। ऐसे मुसलमान को तो डूब मरना चाहिए जो पत्थर की मूर्तियों को भी खुदा मानकर उनका नाम ज़बान पर लाता हो। तुम हिंदुओं के बीच पले बढ़े हो, लेकिन क्या आज तक तुमने किसी हिंदू के मुंह से अल्लाह का नाम निकलते सुना है? क्या कभी किसी हिंदू को माशा अल्लाह या इंशा अल्लाह कहते सुना है? नहीं रुस्तम, तुम्हारी ये कहानी एक दिलचस्प लतीफ़ा तो हो सकती है, मगर इस पर यकीन नहीं किया जा सकता। और फिर तुम्हारे इस ट्रनक में तुम्हारी उस काली माई की फ्रेम शुदा तस्वीर तुम्हारे इस बयान की नफ़ी कर रही है। उसके लहजे में हैरत थी। कैसी तस्वीर? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे का रंग मुतगीर हो गया था, लेकिन उसने फौरन ही अपनी कैफियत पर काबू पा लिया था। मैंने झुककर चारपाई के नीचे से ट्रनक बाहर खींच लिया, इसका ढक्कन उठाया और कपड़े के नीचे से वो फ्रेम निकाल लिया। ये है तुम्हारी काली माई की तस्वीर जिसकी तुम हमारे आने से पहले पूजा कर रहे थे। मैंने वो तस्वीर इसके सामने फेंक दी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।